Hello, my dear learners. How are you guys? Today, we shall begin a new part of the chapter where the concept of circuit diagram will be introduced, isn't it? Till now, the actual set of electric circuit had been built using what? Using real wires, cells, or lamp. But now these setups will be represented symbolically using a standard notation, okay? And before going forward, let's we have a summary of the last lecture. In our last video lecture, you can check the link in the description box. We have studied about the different types of source of electricity like falling water, wind, solar energy, uh, coal, natural gas, isn't it? And we have studied about the structure and function of torchlight. We have explored that there is an electric cell used in the torchlight. We have understand a battery, which is a combination of two or more cell, isn't it? We have studied about that also. We have studied about the electric lamps like incandescent lamp, LEDs. We have studied about, we have understand their concept. We have understand about the electrical connection, how to lamp are incandescent light or LEDs. We have also understand the flow of electric current through a complete circuit that cause the lamp to glow, isn't it? We have studied about that also. We have also studied that current is always flow from positive to negative terminal. We have understand that concept also. We have understand the proper connection that is very much important for LED to glow, okay? That is positive should be connected with positive side and negatives must be connected with negative terminal, isn't it? We have studied about the concept of switch also. We have we have designed a circuit that helps in completing or breaking a circuit, that mention this function of the switch, isn't it? So we have studied about all these concepts in our last video. If you want, you can check the link in the description box. Okay, let's move forward. Here we have a circuit diagram. The first thing, what अभी तक आपने क्या पढ़ा? We have studied cell about this, but अब देखो क्या होगा. सेल एक टाइप का नहीं होता है. देयर इज नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेल. सपोज करो आपने एक सर्किट डिजाइन करी और उसको आपने भेज दिया दूसरे सिटी में, ओके? बट वहां के बंदे ने उस सेल का कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं. उसने दूसरे सेल को देखा था, तो फिर क्या हुआ? कंफ्यूजन हुआ, सर्किट चेंज हो गई. सिमिलरली बैटरी है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक लैम्प है, कितने टाइप्स के लैम्प आते हैं. यदि आपने यही डायग्राम बना दिया, यही ड्रॉ कर दिया आपने सर्किट डायग्राम में, तो क्या इट विल बी मैच? नहीं, उनको कंफ्यूजन हो सकता है, इजंट इट? सो वी क्रिएट अ सिंबल. सो वी क्रिएट अ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का सिंबल. हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, इवन हर इलेक्ट्रिकल, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैव देयर स्टैंडर्ड सिग्नल, है ना? स्टैंडर्ड सिग्नल ही बच्चों स्टैंडर्ड सिंबल. Standard symbol. Why? It is very important to standardize something so that कि everyone will understand the same thing. Isn't it? अब सपोज करो एक बच्चे ने बल्ब को ड्रॉ करना है, अब उन्हें पिक्चर नहीं मिला तो दे नीड टू ड्रॉ अ लैम्प. तो किसी ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और किसी को ड्रॉ करने नहीं आया, किसी ने पेड़ बना दिया. किसी को ड्रॉ नहीं करना है, किसी ने ऐसे बना दिया. इजंट इट? तो अब ये स्टैंडर्ड नहीं है ना बच्चों. पर्सन टू पर्सन, कोई बंदा तो उसने एज इट इज लैम्प ड्रॉ कर दिया. जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है वो ऐसा बना देगा, जिसकी नहीं खराब है वो ऐसा बना देगा. तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हम इसको स्टैंडर्ड डिजाइन दे दें, हम इसे स्टैंडर्ड सिंबल दे दें. भाई अब ये सर्कल बनाना है, अब ये तो आपको बनाना ही है. यू कांट ड्रॉ दिस वे, इजंट इट? आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है. यदि आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो इट विल बी रॉन्ग सिंबल. आपकी सर्किट कंसिडर नहीं की जाएगी. यू हैव टू टेक this symbol diagram only, okay? So you can say circuit diagram is what? A circuit diagram is a simplified drawing that uses symbols to show how different electrical components are connected in a circuit, isn't it? इसीलिए तो आपको मेंशन करना है. आपको राशन वाले को जाकर ऐसा सिंबल दिखाकर थोड़ी ना बोलना है भैया ये वाली सेल दे दो. नहीं ना. यू नीड टू ड्रॉ अ सर्किट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट किसको? जिस इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ काम कर रहा है, उसको. तो वी नीड टू, फॉर ड्राइंग अ सर्किट, for a connect, for drawing a standard circuit we need a electrical symbol, okay?
Or you can write, instead of drawing a real torch or real wire, we use standard symbol that everyone can understand. Like कौन everyone? Engineers, electricians, students worldwide. दुनिया में कहीं भी जाओगे, यदि if you use this symbol, it will be battery only. It will be a single cell only. Okay, it will be a battery symbol, and if you have more than two cell, you can draw it this way. कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can check out here. Number of cells है, number of symbol increase करना है. Okay, yes, you can write here, it's a positive terminal, it's a negative terminal. और यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो, it's a negative, it's a positive terminal, it's a negative terminal. Okay, तो हमें symbol याद रखना है. Done. Next देखते हैं. Here we have a light emitting diode. अपने एलईडी का सिंबल याद है, ये ऐसा होता है. ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है. एलईडी को वो कराने के लिए मेक श्योर कि पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव. क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होता है. जो ये ट्राइंगल बना हुआ है ना बच्चों, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रहे हैं. डन. अब देखो ये स्विच है, ये स्विच है, तो कैसा कनेक्शन है? देखो ऐसा, ये वाला सिंबल यहाँ पे, और ये वाला सिंबल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया. ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर दिस ऑल्सो. और अब देखो ये जो स्विच है, ये कैसा है? ऐसा. ये जो सेफ्टी पिन है ना, जो कनेक्टेड है, वो ऐसा. तो दिस इज द स्विच का सिंबल. अब देखो ये ऑन पोजीशन में क्या होगा? कनेक्टेड है. ऑन पोजीशन में क्या है? कनेक्टेड है, तो हमने कनेक्शन ड्रॉ. ऑफ पोजीशन में ये ओपन है, तो हमने ओपन ड्रॉ कर दिया. सेम सिंबल यूज हुआ है. तो आपको याद रखना है स्विच को कैसे डिनोट करना है. ऐसे स्विच को हमेशा आप ऐसे डिनोट करेंगे. इट्स अ क्लोज ऑन सिचुएशन क्लोज्ड स्विच. जो ऑन सिचुएशन देगा मतलब क्लोज्ड कहने का मतलब ऐसा मत सोचो, ऐसे सोचो कि कनेक्शन सर्किट कंप्लीट है. ओके, ऑन कंडीशन है. और ये हमारा ओपन स्विच है, इसको हम लोग ओपन स्विच कहते हैं. ओपन स्विच का कहने का मतलब है कि ऑफ स्विच है, कनेक्शन फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है, इजंट इट. और ये हमारा क्लोज स्विच है. क्यों? क्योंकि ये ऑन है, तो कनेक्शन हमारा फ्लो होगा. यहाँ पे क्या है? हमारा करंट यहाँ जाके गायब हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करंट आगे फॉरवर्ड होगा. ओके, ये वायर है, वायर को हम सिंपल कनेक्ट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब देखो इन द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल. yes, while the short line represent the negative terminal. yes, हमने already discuss करा था, you can check out here. For a cell, long line is positive terminal, and for a LED, the triangle point in the direction of current flow that allows that arrow show that it emits light. ये जो arrow है ना, ये बता रहा है कि ये light emit कर रहा है. ओके, बाहर निकल रही है, क्योंकि ये डायरेक्शन प्रॉपर कनेक्शन है. ओके, अब देखो हमने क्या पढ़ा. जो पॉजिटिव लाइन में जो बड़ा टर्मिनल है हमारी सेल के, रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा टर्मिनल नेगेटिव. एलईडी में भी सेम फंडा है, जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव. एंड या फिर तुम कह सकते हो जैसे ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल बना है, इस साइड जो है एरिया ये ज्यादा है, तो ये हमारा पॉजिटिव साइड है. ये वाला एरिया कम है, तो यू कैन मेंशन इट्स अ नेगेटिव साइड. ओके. Similarly, in the symbol of for an LED, the triangle points to the direction in which the current can flow. Current can flow in which direction? This. और two arrow क्या indicate कर रहे हैं? That light is emitted by an LED. Okay. By using symbol to represent electrical components, it is easier to draw and understand electrical circuit. Yes. ये बहुत easy हो है. जब हमारे पास symbol होते हैं ना, तो इतने बड़े बड़े सर्किट इतने easy में draw हो जाते हैं जिनका कोई एग्जाम्पल नहीं है, isn't it? तो you can remember the line, a representation of an electrical circuit using symbol is called circuit diagram. Is called circuit diagram. Okay? अब देखो मान लो तुम्हारे पास एक आपको नहीं पता कि सिंबल क्या होता है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? कुछ ऐसा. अब किसी का एलईडी बल्ब ऐसा है, तो उसने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये स्टैंडर्ड हो पाएगा? सबकी समझ में आएगा? नहीं आएगा. आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना. बट इफ यू नो द सिंबल, आप कैसे ड्रॉ करोगे?
कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपने स्विच ड्रॉ कर लिया प्रॉपर कि भाई देख लो ये स्विच है, क्लोज ओपन आप खुद से समझ लेना। ये आपके पास सेल है, या आपके पास बल्ब है, incandescent bulb, incandescent bulb। यदि एलईडी होगा तो वी विल यूज दिस सिंबल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, let us draw using symbol shown in table 3.2. Draw the circuit diagram of an electrical circuit given in figure 3.128 and 3.10, 3.10c और 3.12a। अब देखो, जब हम सिंबल बनाएंगे एक सर्किट डायग्राम बेसिक इनकैंडेसेंट लैम्प के लिए और एलईडी लैम्प के लिए, ऑब्वियस है सिंबल टेबल 3.2 में सारे सर्किट्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। हमने जब इनकैंडेसेंट लैम्प के लिए बनाया तो ऐसा कुछ बनाया, ओके। और जब हमने एलईडी लैम्प के लिए बनाया तो ऐसा बनाया। इसमें भी आप स्विच लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और जो आप, और यहाँ पे भी आप विदाउट स्विच भी लगा सकते हो। विदाउट स्विच क्या होगा, हमारे पास ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं होगा, इजंट इट। और यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। कोई डाउट? हाँ। अब देखो क्या है, अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो बल्ब के केस में रिमेंबर हमने पढ़ा था कि कोई इशू नहीं आता। आप यहाँ पॉजिटिव को इससे भी कनेक्ट कर सकते हो और निगेटिव को, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो का कोई फिक्स नहीं है, दोनों डायरेक्शन में फिलामेंट करंट फ्लो करेगा और ग्लो करेगा। बट जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है दैट मस्ट बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ओनली, दैट must be connected with positive terminal only, and negative terminal must be connected with negative terminal only। समझ में आया? ये दो चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। Here we have, okay, there are some organization like international organizations such as the International Electrotechnical Commission, American National Standard Institute, and the Institute of Electrical and Electronics Engineers create standard symbols for electrical and electronics, but using the same symbol across the world helps people from different countries and industry understand easily। और अनडाउटेडली बच्चों कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए ना, कुछ तो इंस्टीट्यूशन आपको चाहिए फॉर व्हाट, टू स्टैंडर्डाइज दिस सिंबल। कि भाई एक नया डिवाइस बना, कोई नया डिवाइस जनरेट हुआ, उसका सिंबल क्या यूज करना है। तो कुछ हमारे पास इंस्टीट्यूशन है लाइक आईईसी, एएनएसआई और IEEE। ये सारे इंस्टीट्यूशन किसी भी सिंबल को स्टैंडर्डाइज करने का काम करते हैं। तो इससे क्या हमें हेल्प मिलती है? दे आर द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जब हम लोग सिंबल को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो वो क्या है, वो एक लैंग्वेज बन गई कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई वायर को कैसे कनेक्शन करना है, स्ट्रेट लाइन से। लैम्प के लिए क्या सर्किट चाहिए, ये सेल के लिए क्या चाहिए, ये। तो इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ओके, और ये सारे इंस्टीट्यूशन उनको हेल्प करते हैं किसी भी सिंगल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। अब सब कोई तो नहीं आएगा, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, नहीं भाई नहीं हमें ऐसा ही चाहिए, कोई बोलेगा नहीं मुझे ऐसा चाहिए। अरे नहीं भाई, आपके पास कुछ फिक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वही ये सारे सर्किट्स को, सारे कंपोनेंट्स को सिंबल देते हैं। ओके, और इससे क्या हेल्प मिली? इट विल इंश्योर द क्लियर कम्युनिकेशन इन डिजाइनिंग सर्किट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड फॉर द कंसर्न ऑफ सेफ्टी। ओके, चलो आगे देखते हैं। Here we have a electrical conductors or insulator। ओके भाई, अब देखो एक बच्चे का क्या क्वेश्चन है, why did we use metal wires for making electrical circuit? Can we not use some other material for wires? बताओ जरा। फिर ये क्या बोलता है, ऑल्सो वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स कवर्ड विथ प्लास्टिक एंड रबर। अनडाउटेडली दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं कि भाई एक तो वायर है और इसके ऊपर से हमने एक प्लास्टिक कवर भी लगा दिया है, इजंट इट। क्यों भाई, ये दोनों क्वेश्चन क्यों है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे? पहला क्वेश्चन है कि क्या हम सारे कनेक्शन मेटल वायर से ही करें और अदर से नहीं कर सकते, और दूसरा, और जब मेटल वायर से किया तो इसके ऊपर कवर क्यों लगा दिया। देखो पहले वाले का पहले आंसर देते हैं, बिकॉज मेटल्स लाइक कॉपर, अल्यूमिनियम, सिल्वर लेट इलेक्ट्रिक करंट पास easily across it।
so they are used for wires. यस, यदि आप वुडन, आप देखो, आप यदि वुडन वायर्स यूज करोगे तो जब वो इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं होने देगा, कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो क्या फायदा वायर बनाने का? वायर का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट को एक टर्मिनल से दूसरे करंट टर्मिनल तक पहुंचाना। बट जब वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, उसको फ्लो करने ही नहीं देगा, तो वायर का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। इट मीन्स वी नीड अ कंडक्टर जो अपने अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। सो वी यूज मेटल फॉर वायर डिजाइनिंग, ओके, फॉर वायर कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विथ प्लास्टिक और रबर? ताकि हमें करंट ना लगे, हमारी सेफ्टी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Because these material do not conduct electricity, they act as a protective insulator to prevent electric shocks to us. हम तो कंडक्टर है, वी आर द कंडक्टर्स, हमारे क्रॉस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। तो हम यदि वायर को टच करेंगे तो वी विल गेट शॉक, इजंट इट? तो हमें शॉक लग जाएगा। तो अपनी सेफ्टी के लिए, घर की सेफ्टी के लिए, वी नीड अ कवर्ड फॉर दीज इलेक्ट्रिक वायर्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है, जिनके जो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल वायर्स, दे नीड अ प्रोटेक्शन कवर। ओके, चलो आगे देखते हैं। Suppose we make wires of material other than metal, okay, and use them to make the electrical circuit. Do you think the electric current will pass through those material in such a circuit? No, obvious, because they do not conduct electricity. आप मेंशन कर सकते हो कि मेटल के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, सो it will not allow the electric current to pass electric current through those circuit. Okay, चलो आगे देखते हैं। Here we have a next activity. Let us connect an electrical cell, a lamp, while leaving the two end of wire free as shown in figure 3.15a. Okay, here we have. देखो, आपके पास सेल है, लैम्प है, ये कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी कर रखा है और आपने ये दो टर्मिनल को ओपन छोड़ दिया। डन। Touch the two free end of the wires momentarily. Does the lamp glow? If yes, our tester is ready. We can use these tester to identify the material through which electric current passes. Okay, fine. आप इसको टच करोगे ना तो you will understand कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है. Okay, then it means कि we conduct electricity. It means what? We conduct electricity. शॉक नहीं लगेगा क्योंकि आपके छोटे वाले जो सेल है ये बहुत कम वोल्टेज के होते हैं, तो you will not get shock. Okay, तो अभी क्या करना है? कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज स्पून, कॉइन्स, कॉक, रबर, इरेजर, whatever you have, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, saving needle, कार्डबोर्ड, पेपर, पेंसिल, लीड, इजंट इट? ये सारी बेसिक चीजें, इन सबको इकट्ठा करना और यहाँ पे कनेक्ट करके चेक करना, दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करके कि हमारी बल्ब ग्लो हो रही है या नहीं हो रही है। One by one, touch the free ends of the tester wire to both ends. Make sure the wire don't touch each other. देखो, वायर को एक दूसरे को टच नहीं कराना, ओके? जब डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा तो फिर आपके मटेरियल को, जो भी आप आइटम यूज कर रहे हो, उसका आप पर्पस फुलफिल नहीं कर पाओगे, उसको जान नहीं पाओगे कि वेदर दे आर कंडक्टिंग और नॉट। तो आपको वायर, इन चीजों को थोड़ा बड़ा लेना है और वायर को यहाँ टच करना है और दूसरा वायर को यहाँ। और फिर आपको देखना है कि लैंप हमारा कब कब ग्लो कर रहा है। क्या वो एवरी टाइम ग्लो कर रहा है? यू विल अंडरस्टैंड, नो, हर वक्त नहीं ग्लो कर रहा है, वो उन्हीं चीज़ों के साथ ग्लो कर रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। तो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर ऑल्सो। ओके, हियर वी हैव अ टेबल फॉर दैट। हमने चेक करना है कि कब कब किया। सबसे पहले क्या कब कब करेगा? फर्स्ट थिंग, कंडक्टर मटेरियल जो भी रहेगा, मटेरियल थ्रू विच करंट फ्लो इजली। तो हमारे पास जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, लैम्प विल ग्लो। ओके, और जो इंसुलेटर होंगे, दैट ब्लॉक्स द इलेक्ट्रिक करंट, दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू क्रॉस अक्रॉस टू पास थ्रू इट। तो उसमें क्या होगा? हमारे करंट, हमारा लैम्प ग्लो नहीं करेगा बिकॉज हमारी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यू कैन प्रिपेयर द टेबल, यू कैन ऐड टू मोर आइटम लाइक कॉइन, आयरन, नेल, मेटल है और दूसरा आयरन है, और यू कैन चेक इट आउट कि किसके साथ कर रहा है। वुड के साथ लैम्प विल नॉट ग्लो, प्लास्टिक नो, ग्लास नो,
पेपर के साथ भी वो ग्लो नहीं करने वाला, मेटल के साथ क्योंकि की है तो ग्लो करेगा, कैंडल के साथ ऑब्वियस नहीं करेगा, इरेजर अगेन रबड़ है नहीं, कॉइन के साथ यस, आयरन नेल के साथ यस, यू कैन ऐड द स्पून ऑल्सो, करेगा। और जब जब करेगा इट मीन्स कि वो कंडक्टर है, जब जब वो कंडक्ट करेगा इट मीन्स कि हमारा जो मटेरियल है दैट इज अ कंडक्टर, ओके। और जो नहीं कर रहा है दैट इज अ इंसुलेटर, दैट blocks the electric current, okay done. Here we have analyze your observation. Did the lamp glow for all material? Obvious and no, by no. The lamp will glow for some material only. This means that the electric current can pass easily through some materials but not through all others. Okay. The material through which electric current can flow easily are called good conductors or conductors of electricity. The material through which current cannot pass through are insulators and poor conductor of electricity. ये याद रखना, ठीक है। Based on the observation, you have a recorded in table 3.3 that conclude which materials are conductors of electricity and which are insulator. Obviously, अभी just हमने करा. Now you would realize that metal are conductor of electricity. Yes, thus they are used for making wires. ये तो हमने अभी just discuss करा था. Again, the best one कौन सा है? Silver, copper and gold are the best electrical conductors. However, for making electrical wire, mainly copper is used due to its comparatively lower cost and abundant supply. Different types of electrical wires are used for different uses. Obvious है, जब हमें बहुत accuracy चाहिए होती है ना, then we use silver and gold. First फंडा. Second फंडा, यदि आप डे टू डे लाइफ में सिल्वर और गोल्ड निकाल मतलब वायर्स बना लोगे, यार लोग इतने इतने गए गुजरे हैं, आई कैन से कि वो वायर्स में से बोलेंगे बिजली मुझे नहीं चाहिए, हमें सोना और चांदी चाहिए, और वो वायर में सिल्वर और गोल्ड निकाल लेंगे, isn't it? तो इसीलिए डे टू डे लाइफ में एल्यूमिनियम और कॉपर यूज होता है फॉर द वायरिंग सर्किट, हम सिल्वर और गोल्ड को यूज नहीं करते हैं। बट यस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जहाँ पे हमें हाई इफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, हमें बहुत अच्छी कंडक्शन की ज़रूरत होती है, देयर वी यूज सिल्वर एंड गोल्ड आल्सो, ओके। चलो आगे देखते हैं। From table 3.3, you would have also realized that plastic, rubber and ceramics are electrical insulator. Yes. Have you now understood why wires are covered with those material? Yes, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, और दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर बोथ इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस है भाई, दोनों चाहिए। इलेक्ट्रिकल wires, switches, connector of plug and sockets are made of conductors. अंदर से वो सब के सब कंडक्टर्स होते हैं, बट इंसुलेटर लाइक रबर, प्लास्टिक एंड सेरामिक्स आर यूज्ड टू कवर दोज वायर, प्लग के टॉप, स्विचेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. So we use insulators to make the cover to protect people from electric shock. Okay. अब important क्या है देखो, our body is a conductor of electricity. Electric current pass through our body may cause severe injuries or even death. हाँ, high power जब electric current cross होता है, बच्चा आपको उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा भी नहीं होगा, आपकी बॉडी पार्ट्स इंजर हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स फेलियर हो जाएंगे। तो इट्स बेटर ऑलवेज वेयर स्लीपर्स, ऑलवेज हैव अ ड्राई हैंड जब भी आप स्विच या कोई भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टच करते हो, ओके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विथ वेट हैंड्स, क्योंकि वेट हैंड में ना कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है, इंप्रूव कर दे रहा है, तो कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज होगा, यू विल गेट शॉक, ओके। तो इट्स बेटर कि आप जब भी कोई बेसिक डे टू डे लाइफ में जो भी स्विच ऑन करते हो, मेनली आप जब वॉशरूम से निकलते हो नहा कर, हैंड वॉश करके, तो आप गीले हाथ से स्विच ऑन ऑफ कर देते हो, तो मेक श्योर कि आपका हाथ ड्राई हो, आप हाथ पोंछ लो, उसके बाद ही आप स्विच को ऑन और ऑफ करो, ओके। और यूज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ करते हो, जैसे फ्रिज है हमारा, माइक्रोवेव ओवन है, या फिर आप एसी है, स्विच है, प्लग एरिया होते हैं, उसके स्टेबलाइजर होते हैं, तो आप किसी भी गीले हाथों से टच नहीं करो, और ये सारे डिवाइसेस को गीले एरिया में भी नहीं रखना चाहिए, और यू शुड अंडरस्टैंड टू हैंडल दीज डिवाइस विद प्रॉपर प्रिकॉशन, ओके। और यदि आप उनको गीले एरिया में रखो तो दैट मे हेल्प
that may create what damage insulation or broken plugs. आपको कोई कहीं कुछ जो इंसुलेशन है वो कहीं डैमेज होगा तो भी आपको शॉक लग सकता है. ओके, अब अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट? ध्यान दिया है, वॉल सॉकेट इज आपके घर का इलेक्ट्रिक स्विच. ओके, तो यस, जो बैटरी आपकी सेल से या जो आप इलेक्ट्रिक करंट लेते हो वो डायरेक्ट करंट होता है, क्योंकि वो स्मॉल पावर का होता है छोटे छोटे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए. बट जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है फ्रॉम द पावर प्लांट्स, जो इलेक्ट्रिकल स्विच के थ्रू आती है, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. और दैट कैन रन लार्जर अप्लायंसेस, आपके एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी. जो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं, बहुत हाई पावर कंटेन करते हैं, ये हम सस्टेन नहीं कर सकती, ये हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती. बट जो बैटरी वाला पावर होता है दैट इज अ डीसी करंट. स्ट्रेट लाइन आती है, आप आगे क्लासेस में और भी डिटेल में पढ़ोगे. तो जो डीसी करंट होता है वो लो पावर का होता है, वो आपकी बॉडी सस्टेन कर लेती है. लो वोल्टेज लो पावर का होता है. बट हाई करंट बहुत ज़्यादा 220 वोल्टेज होता है, हाई पावर होता है, तो ऑब्वियसली आपको वो सस्टेन नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी. तो आपको ख्याल रखना है. ओके, बैटरी अगेन छोटी से लेके बहुत बड़ी बड़ी बैटरी भी आती है आपकी, इन्वर्टर बैटरी जो आपकी व्हीकल्स में यूज होते हैं. तो मेक श्योर कि मैं अभी यहाँ जो छोटे पावर की बात कर रही हूँ वो ऑल सारी बैटरीज डीसी पावर ही देती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करती है, फिर जनरेट करती है, तो वो डीसी करंट देती है, डायरेक्ट करंट उसको हम कहते हैं. ओके, सारे ऑलमोस्ट सारी बैटरी. इक्का दुक्का हमारे पास एक्सेप्शंस आर देयर. आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, बहुत हायर स्टैंडर्ड पढ़ोगे. इफ यू डू इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर और इंजीनियरिंग देन यू विल अंडरस्टैंड. इक्का दुक्का हमारे पास है हाई पास बैटरी, बट ऑलमोस्ट सारी बैटरी हमें डीसी पावर ही सप्लाई कर, डीसी करंट दैट इज डायरेक्ट करंट ही सप्लाई करती है. ओके, okay, here we have, you can understand the concept in short form. Direct current is flow in one direction and it helps in power small devices like torch, toys, remote wall clock. और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वॉल सॉकेट जो आपके स्विच में आती है दैट चेंजेस करंट पीरियोडिकली, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ करा है. वो अपना पीरियोडिकली आप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, उनका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता रहता है. बहुत हाई पावर कंटेन करती है एंड दैट हेल्प्स इन रन larger appliances like fridge, TV, washing machine or AC, whatever. Okay, okay, here we have a summary of complete chapter. You will understand the, I think you have understand the electric cell is a portable source of energy. We have read about these concepts. We understand the electric cell have a two terminal, that is positive and negative terminal. We understand about the incandescent light electric lamp. We understand about the LEDs light, and these have two terminal. One is positive जो बड़ा size होता है, that has a long wire, and other have a negative, that is a short wire. We understand the electric current through LED in only one direction can pass. Electric current can pass through LED in only one direction, and LED lights up only when its positive terminal connects to positive terminal of the battery. Okay, and negative terminal must be connected with the negative terminal of the battery. Okay, done. Then next we understand the concept of switch. We understand all these concepts. We understand the concept of circuit diagram. We understand concept of electrical symbols, which we have you understand. We have understand about the symbols of battery, cell, incandescent light, LEDs, isn't it? Switch and wires. Okay, and and the last we have understand about the concept of conductors and insulator. And you can have a small notes about it. Okay, you can note it down if you want. Let's move forward. Here we have some question answer. Choose the incorrect statement. A switch is the source of electric current in a circuit. Is it? Switch is a source? No, it's a wrong circuit, isn't it? A cell, a battery is a source of electric current. Switch का तो काम बस circuit को break करना है या complete करना है. A switch helps to complete or break the circuit. Yes. A switch helps us to use electricity as per our requirement. Yes, correct. When the switch is off, there is an air gap between its terminal. Yes. Off रहेगा तो obvious है कि air gap रहेगा ना इस area में. Undoubtedly, तो the incorrect statement is first one. Okay, चलो next देखते हैं. Observe figure 3.16 with which material connected between the
ends A and B, the lamp will not glow. Okay, done. अब कौन सा मटेरियल हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो लैम्प विल नॉट ग्लो? जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को पास ना करे, वो कौन सा मटेरियल है? Insulator. So you can write the answer. If we connect an insulator like rubber, wood or plastic between A and B, the lamp will not glow because current cannot pass. Done. Next question देखते हैं. In figure 3.17, okay, if the filament of one of the lamp is broken, okay, will the other glow? Justify your answer. Okay, done. अब देखो इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है. सेल दे दिया. अब यहाँ बल्ब में क्या है? फिलामेंट है. लेट्स ड्रॉ फिलामेंट पार्ट ओनली. यहाँ पे बल्ब में क्या है? इनकैंडेसेंट लैम्प है तो फिलामेंट है. डन. मैंने बस फिलामेंट ड्रॉ करा. कह रहा फिलामेंट ब्रोकन, मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमारे एक सर्किट का फिलामेंट ब्रोक कर गया. ब्रोक है मतलब टूटा हुआ है. टूटा हुआ है तो यू कैन ड्रॉ दिस वे. अब देखो यदि फिलामेंट यहाँ पे ब्रोकन है तो इसका मतलब सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है. और सर्किट कंप्लीट नहीं है इट मीन्स करंट विल नॉट फ्लो. अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो बेचारा ये फिलामेंट कैसे ग्लो करेगा? तो फिर as the lamp are in series, the broken filament stop the current entering the circuit. और आपको करंट फ्लो नहीं करेगा इंटायर सर्किट में, सो द लैम्प विल नॉट ग्लो. अब देखो एक और फंडा है. सपोज करो आपका ये लैम्प ऐसे बना रहता. अब देखो यदि इस लैम्प का फिलामेंट टूटा रहता तो भी ये वाला लैम्प फ्लो करता, क्योंकि दिस इज अ कनेक्शन इन पैरेलल. दोनों लैम्प हमारे पैरेलल में कनेक्शन है. तो हमारा इस वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता. यहाँ तो फ्लो होता ही होता, क्योंकि हमारी सर्किट का करंट कैसे फ्लो होता है? इस सर्किट के पॉजिटिव से नेगेटिव सारा मिल रहा है. ओके, मैंने पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनाया, नेगेटिव बना लो. ये पॉजिटिव है तो क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया ना पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारी ये वाली सर्किट कंप्लीट हो रही है. तो हमारा एक बल्ब ग्लो करता है. दैट इज ऑफ बिकॉज ऑफ पैरेलल कनेक्शन. अंडरस्टैंड? बट ये सीरीज में है तो हमारी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, तो हमारा कोई भी लैम्प ग्लो नहीं करेगा. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have a student forgot to remove the insulator covering from the connecting wires. Okay, while making a circuit, if the lamp and the cell are working properly, will the lamp glow? उसने इंसुलेटिंग जो कवर होता है ना वो रिमूव करना वो भूल गया. अब देखो यदि वायर्स और लैम्प के बीच ये जो कवर एरिया है, ये जो वायर है, यदि ये वायर सेम ये वाला वायर रहता तो बच्चों वो कंडक्ट ही नहीं करता. यदि आपने इंसुलेटेड वायर से ही उसको कनेक्शन कर दिया तो हमारा बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कंडक्ट ही नहीं करेगा. मतलब किसको कनेक्ट नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक करंट वायर तक तो आएगी बट वायर से बल्ब में नहीं जाएगी. तो it means it will not glow the lamp. So you can write the lamp will not glow because the wire are not exposed, so the circuit stays open. तो वायर को आपको क्लीन करना ही पड़ेगा, मतलब उसका मेटल वाला पार्ट को बाहर निकालना पड़ेगा टू कंप्लीट द सर्किट. ओके, मेटल टू कनेक्ट द मेटल फ्रॉम द मेटल, मेटल को मेटल से कनेक्ट करना पड़ेगा. ओके, draw a circuit diagram for a simple torch using symbol for electrical component. अब हमने सर्किट टॉर्च कैसा होता है ऐसा. तो तीन ही चीज इसमें कंपोनेंट्स में मेन इंपॉर्टेंट है. क्या क्या? एक बैटरी, एक स्विच और एक लैम्प. अदर पार्ट को इतना लोड नहीं लेना. जो मेन कंपोनेंट है वो यही तीन है. तो हम इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं. दो बैटरी को हमने ड्रॉ कर दिया, एक स्विच को ड्रॉ कर दिया, एक बल्ब लगा लिया. बन गए बेसिक सा सर्किट डायग्राम फॉर योर टॉर्च. डन. चलो आगे देखते हैं. अब देखो इन फिगर 3.18 here we have a figure. If S2 is open, okay, we have a different conditions. Okay, done. तो इसमें क्या क्या आपके पास दो स्विच है, दो लैम्प है और एक सेल है. डन. अब अलग अलग सिचुएशंस में कनेक्शन दे रखे हैं. पहले हम लोग सर्किट को समझ लेते हैं. हमारे पास दो बल्ब है S1 S2 और हमारे पास दो बल्ब है L1 L2, स्विच है S1 S2. बैटरी का क्या काम है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल करंट. ऑब्वियस है. कनेक्शन किस में है? सीरीज कनेक्टेड है. इट मींस करंट फ्लोज थ्रू बोथ स्विच एंड लैम्प इन अ सिंगल पाथ. करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा. डन.
अब हमने क्या समझा, द बल्ब विल ग्लो ओनली इफ द सर्किट इज कंप्लीट। देखो फंडा ध्यान से समझना, ठीक है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी हमारा बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो नहीं करेगा। नो ब्रेक्स इन द पाथ फ्रॉम बैटरी स्विच बल्ब एंड बैटरी। बैटरी से शुरू होकर बैटरी पे हमारे कनेक्शन को खत्म होना पड़ेगा। यदि ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट रहेगा तभी हमारा एक भी बल्ब काम करेगा। डन। चलो अब चेक करते हैं। इफ हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ S2 इज ऑन, S2 इज ऑन, S2 मतलब ऑन है, इसका मतलब कि हमारा S2 क्लोज कर दिया, ऑन सिचुएशन आ गया। लैम्प को हम ड्रॉ कर लेते हैं, अपने L2 को, S2 को भी ड्रॉ कर लेते हैं और हमारे L1 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इजंट इट? L1 नाराज हो जाएगा। S2 इज ऑन एंड S1 इज ऑफ। अब S1 को उन्होंने क्या कर दिया, ऑफ ही कर दिया। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स ड्रॉ सेल। देखो डायग्राम यदि खराब हो ना तो इतना कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि मैम आप अच्छा डायग्राम नहीं बनाते। ओके, इट डजंट मैटर्स, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब देखो S1 हमारा क्या है, ऑफ ही है। तो भाई करंट कहाँ से, यहाँ से निकला और यहीं पे आके खत्म हो गया, आगे तो बेचारा बढ़ ही नहीं पाया, उसको पाथ ही नहीं मिला। इसका मतलब कोई नहीं जलने वाला भाई, ना हमारा L1 जलने वाला ना L2, कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। You can write if S2 is in on position and S1 is in off. S1 is off, circuit is open. Circuit open है मतलब circuit broken है. No current can flow. The result will be what? No lamp will glow. Done? Done. चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, S2 is off. उन्होंने क्या करा, S2 को ऑफ कर दिया। चल ठीक है यार, S2 को हम ऑफ कर देते हैं और S1 is in on. चल ठीक है, ये भी ठीक है, करके देख लेते हैं, क्या ही करना है ना। उन्होंने S1 को ऑन कर दिया तो फिर हम लोग इसको S1 कर देते हैं और बैटरी ड्रॉ कर लेते हैं, सेल का डायग्राम। डन। अब क्या बोला, अब क्या क्या कंडीशन होगा भाई, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकला निकला निकला, यहाँ क्या अटक गया बेचारा, हवा में लटक गए। अब आगे का पाथ ही नहीं मिला उनको, यहाँ ब्रेक इन आ गया, ब्रोक आ गया, एक रास्ते में ब्रेक आ गया। इजंट इट? अगेन हमारा कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई बल्ब नहीं जलने वाला, सर्किट हमारी अभी भी ब्रोकन है। नो लैम्प विल ग्लो भाई, नो लैम्प विल ग्लो। चलो थर्ड सिनारियो देखते हैं। वो दोनों स्विच को ऑन कर दिया, दोनों स्विच को ऑन कर दिया इन्होंने। चलो भाई साहब को थोड़ा समझा कि चलो चेक कर लेते हैं दोनों स्विच को ऑन करके, व्हाट द रिजल्ट कैन बी। इजंट इट? लेट्स चेक। करंट निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, यहाँ भी पाथ क्लोज है। वाह 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 वाह, अरे वाह, मतलब करंट को रास्ता मिल गया भाई, मतलब दोनों लैंप जल गए। दे बोथ विल ग्लो, दे both lamp will glow. You can write the concept. Yes, S1, S2 in both situation, both switches are on, complete the circuit. That will allow current flow through the both bulbs and both L1, L2 will glow. Yay! Finally हमारे दोनों बल्ब स्विच ऑन हो गए एंड ग्लो कर गए, चमक उठे। ओके, अब तो हमारा लास्ट सिनारियो क्या है, S1 S2 दोनों को ऑफ ही रखा है। देखो ऐस सिचुएशन में यहीं से निकल के इसको पाथ ही नहीं मिला, बेचारा कहाँ कंडक्ट करेगा। तो सेम सिनेरियो है, कोई लैम्प ग्लो नहीं करने वाला। इजंट इट? यू कैन राइट नो लैम्प विल ग्लो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। विद्युत has made the circuit as shown in figure this. Okay, even after closing the circuit the lamp does not glow. Oh my god, उसने circuit तो सही बनाई थी। That can be the possible, what can be the possible reason? Okay, हमें possible reason find out करना है। List as many possible reason as you can do for this faulty operation. What will you do to find out why the lamp did not glow? अब देखो, सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करते हैं और वन बाय वन रीजन को चेक आउट करेंगे। तो क्या हो सकता है कि उसने कोई कनेक्शन लूज छोड़ा हो। इतने सारे कनेक्शन से कोई भी कनेक्शन लूज होगा। हो सकता है कोई इंसुलेटेड वायर हो, वायर में से इंसुलेशन हटाना छूट गया होगा प्रॉपर, और आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी कनेक्शन है, तो मे बी कोई भी कनेक्शन लूज होगा, कोई इंसुलेटेड वायर का कनेक्शन हो सकता है फर्स्ट। और सबसे पहले तो क्या चेक करना है, बैटरी चेक कर लेना है, बैटरी इज वर्किंग और नॉट, एलईडी से चेक कर लो।
बल्ब इज फ्यूज तो नहीं है भाई, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, इजंट इट? तो आप ऐसे चेक कर सकते हो वन बाय वन। सबसे पहले चेक कर लो लूज कनेक्शन, चेक कर लो सेल हमारा डेड है या ऑन, सही है। लैम्प तो फ्यूज नहीं है, स्विच हमारा काम कर रहा है कि नहीं, या वायर हमारा ब्रोकन है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को आप चेक कर लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। और आपको वन बाय वन चेक करना है कि ये सारे में से क्या फॉल्ट है, एंड यू विल गेट योर सर्किट वर्किंग। ओके डन। यदि सब कुछ काम करेगा तो सर्किट को काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ सही हो, सर्किट विल नॉट वर्क, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फंडा ही नहीं है कि नहीं काम करेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। Here we have question number 8. In figure 3.20, in which case the lamp will not glow when the switch is closed. आपके पास चार डायग्राम दे रखी है, सर्किट डायग्राम। अब आपसे पूछ रहा है कि जब आप स्विच क्लोज करते हो तो किस केस में लैंप नहीं चलेगा। दो केस में आपके पास इनकैंडेसेंट लैंप है और दो केसेस में आपके पास एलईडी है। अब फर्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पे यदि आपने सर्किट को क्लोज करा, स्विच को क्लोज करा, कहने का मतलब सर्किट आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट करेगा और आपके पास सर्किट में करंट फ्लो करेगा एंड द लैंप विल ग्लो। सेम सिनेरियो में यदि आपने ये सर्किट क्लोज करा तो आपके पास ये करंट फ्लो करेगा और द लैंप विल ग्लो। अब थर्ड डायग्राम में यदि आपने स्विच को क्लोज किया तो आपके पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो करेगा, बट ये इसका एलईडी का नेगेटिव साइड है एंड दिस वन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। करंट एलईडी की डायरेक्शन, एलईडी में सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इस केस में हमारा लैम्प विल नॉट ग्लो। अब यहाँ देखते हैं थर्ड डायग्राम में, आप यदि स्विच को क्लोज करोगे पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो करेगा और आपका ये करंट फ्लो करेगा बिकॉज एलईडी में करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है एंड द लैम्प विल ग्लो। अब वन बाय वन हम लोग सर्किट को लिख लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम में क्या होगा, सिंपल सर्किट है, बैटरी स्विच एंड बल्ब है। स्विच आप क्लोज करोगे तो सर्किट विल कंप्लीट एंड द लैम्प विल ग्लो। बी डायग्राम में आप चेक कर सकते हो, बस हमने बैटरी का रिवर्स कर दिया है, तो सेम दैट विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प एंड द लैम्प विल फ्लो। थर्ड डायग्राम में आपका एलईडी है, बट एलईडी को हमने अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। सो इस सिनेरियो में लैम्प विल नॉट ग्लो इन द डायग्राम सी एंड डी डायरेक्शन में सही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। सबसे पहले टर्मिनल चेक करना है एंड फिर आपको सर्किट चेक करना है कि सर्किट पूरी क्लोज है या नहीं है। तो इस केस में भी लैम्प विल ग्लो। तो सिर्फ हमारा डायग्राम सी है जिसमें हमारा लैम्प will not glow because of the direction of LED or you can say the direction of the battery connected. Done? चलो next question देखते हैं। Here we have, suppose plus and minus symbol cannot be read on a battery. Suggest a method to identify two terminal of the battery. आपके पास एक बैटरी है जिसका प्लस माइनस आपको गिवन नहीं है। सबसे इजी तरीका है एलईडी को कनेक्ट कर दो। आपके पास एक एलईडी है, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल को किसी एक से कनेक्ट करो और नेगेटिव को किसी एक से। ठीक है, पॉजिटिव वाज द लॉन्गर वायर, जो आपकी एलईडी है, ये आपकी एलईडी है, जो आपका लॉन्गर वायर है ये पॉजिटिव है, जो शॉर्टर वायर है वो नेगेटिव है। तो आपने जब कनेक्ट किया पॉजिटिव को पॉजिटिव से, सपोज करो पॉजिटिव को आपने एक टर्मिनल से कनेक्ट किया और एलईडी ग्लो कर गई, इट मींस कि वो टर्मिनल पॉजिटिव ही है और दूसरा नेगेटिव है। बट यदि एलईडी ग्लो नहीं करेगी तो इट मींस ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डन। यू विल फाइंड अ टेस्टर मेथड, एलईडी टेस्टर मेथड कहते हैं उसको। कनेक्ट द एलईडी, इफ इट क्लोज द लॉन्गर वायर इज एट द बैटरी पॉजिटिव एंड एंड इफ नॉट स्वैप द कनेक्शन एंड चेक इट आउट। डन डन। Here we have a next question. You are given 6 cells. Okay, आपको 6 सेल दिया है, marked as A, B, C, D, E and F. Okay, done. आपके पास 6 सेल है, some of these are workings and some are not. Oh, ये तो difficult task है, but चलो कोई नहीं। Design an activity to identify which of them are working. सबसे पहले आपको आइटम को लिस्ट बनानी है, list the item that you require. अब इस सर्किट के लिए आपको याद होगा तो हमारे पास क्या क्या हमें आइटम की रिक्वायर्ड है। स्मॉल बल्ब की जरूरत है, एक बल्ब होल्डर चाहिए और एक कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, 2 कनेक्टिंग वायर्स, इवन 4 कनेक्टिंग वायर ऑन और वी नीड अ सेल होल्डर, इजंट इट। अब प्रोसीजर क्या होगा, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या हो सकता है, स्टेप्स, इजंट इट। प्रोसीजर इज स्टेप्स टू डिजाइन अ सर्किट वन बाय वन। अब बोलोगे मैम कब किया था हमने, ये हमने किया था एक्टिविटी 3.6 में इन डिटेल। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
एक्टिविटी 3.6 में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप बल्ब को वायर से कनेक्ट कर दोगे या फिर बल्ब को बल्ब होल्डर में डाल के वायर से कनेक्ट कर दो। उसके बाद अपने जो बैटरी है उसको बल्ब बैटरी होल्डर में कनेक्ट कर दो। ये मेक श्योर करना कि एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल हमारा नेगेटिव होगा। अब वन बाय वन क्या करना है, हम लोगों को एक एक करके उसमें बैटरी इंसर्ट करना है और चेक करना है कि हमारी किस सिचुएशन में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। यदि बल्ब जिसमें ग्लो करेगा इट मीन्स वो बैटरी हमारी वर्किंग सिचुएशन में है। जिस सेल में वो ग्लो नहीं करेगा इट मीन्स हमारा वो सेल डेड है, इजंट इट? तो यू कैन मेक अ टेबल, यू विल हैव दिस कनेक्शन। ये सेम सर्किट हमने कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। और फिर हम लोग वन बाय वन करके ऐसे एक एक सेल निकालेंगे, डालेंगे और कनेक्शन को, रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे इस टेबल में। ऐसा जब भी बल्ब ग्लो करेगा तो हमारी सेल वर्किंग होगी, उसमें वो डेड नहीं होगा। और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा इट मीन्स हमारा सेल डेड है, दैट इज एन नॉट वर्किंग सिचुएशन। डन। Here we have a next question. An LED requires two cells in series to glow. Okay, done. In series, remember, it requires two cells in series to glow. ठीक है. Tanya made the circuit as shown in figure. This will the lamp glow? If not, draw the wires for correct connection. अब देखो, तान्या ने एलईडी ले लिया, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, उसने पॉजिटिव को तो पॉजिटिव से कनेक्ट किया बट उसने निगेटिव को भी पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर दिया। इट मीन सर्किट will not work, the lamp will not glow. Okay, तो answer is no, the LED will not glow. Reason क्या होगा? Reason will be in the image both cell are connected with the positive terminal, which is incorrect. Cell must be connected in series for the voltage to add up, isn't it? तो इसका क्या कहने का मतलब है कि पॉजिटिव ऑफ वन सेल टू नेगेटिव ऑफ द अदर्स, देन द सर्किट विल ग्लो। तो फिर क्या होगा, कनेक्ट आपको पूरे कनेक्शन को सही करना पड़ेगा एंड देन द एलईडी विल ग्लो। कैसा होगा कनेक्शन? कुछ ऐसा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया और इस वाले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। Done. In this case, the LED will glow. Okay. Okay, done. I think that's enough for today video. And this brings us to the end of our lesson on electricity and circuit. I hope you now understand how simple yet powerful these concepts are. They are very basic concepts, but these are the very you can understand. You can say it's a base of your physics concept, it's a base of your electrical physics concept. तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लग रहे हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now what you can do, you can make your own circuit at home with safe material. अब safe material क्या है? Like batteries, LED. But remember, safety first. If you have any question, please write them in a comment section and don't forget to like, share and subscribe for more science lessons. Okay? See you next time. Keep learning, keep experimenting. Thank you everyone.